Okay, so Amit, let's proceed ahead with your mock for NPCL, and we start with a very brief introduction. Okay, sir. So my name is Amit Dayal. I am from Jamshedpur, Jharkhand. So my father's name is Mr. Shankar Dayal and my mother is a homemaker. Sir, I did my schooling from Narbharam Hansraj English School. And after that, sir, I completed my Bachelor of Technology in Chemical Engineering from Birsa Institute of Technology, Dhanbad. Sir, I did my BTech project on production of biogas under the guidance of our respected HOD, Dr. SP Singh, sir. Sir, my hobbies are playing outdoor cricket games and generally I read editorial part of the newspaper section. That's all about myself. So you are from Jharkhand. Yes, sir. Jharkhand is very famous for minerals. Yes, sir. Can you name some of the minerals available in Jharkhand? Sir, basically iron ore. Mhm. It is found in abundant quantity in Jharkhand. Mhm. And sir, what NPCL uses is the uranium, which is the general uranium is found in. It is in the Jadugoda plant. जादूगुड़ा. Yes, sir. कौन सा यूरेनियम मिलता है वहां पे? Sir, natural uranium. What is the Uranium formula? 235. That is not natural. That is enriched uranium 235. Natural uranium is 238. Sir, but it 238 generally it's not being used तो nowadays. natural uranium किसको बोलते हैं और enriched किसको बोलते हैं? Sir, I don't really know the actual accurate difference between them. You know what is plutonium? Yes, sir, it's a radioactive element also. And what about thorium? Yes, sir, thorium. The research is going on thorium. Thorium 232. अच्छा मेरे को एक बात तो अगर कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं तो वो आपके झारखंड वगैरह में लग जाती हैं, स्टील इंडस्ट्रीज, यू नो, टाटा। Yes, sir. यूरेनियम का रिएक्टर है कोई वहां पे आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का? नहीं सर, यहाँ झारखंड में तो नहीं। लेकिन रॉ मटेरियल तो वहीं पे है यूरेनियम, फिर वहां पे क्यों नहीं है रिएक्टर? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? सर mainly because generally the demand for electricity, sir. That is less in Jharkhand? Yes, sir. Mainly the place where I live, so there is less demand because mostly the electricity is being handled by Tata Steel over here. Okay. And, sir, if we can see the future prospect, we can set up the nuclear power plant in the generally in Dhanbad and the outside area of Dhanbad, which is Sindri town. Because there is some demand for electricity for the people of Dhanbad, because the Dhanbad uses generally the DVC, I think DVC electricity, the Damodar Valley Corporation. So there is some demand over there, so we can set up the nuclear power plant. Okay, Amit, any special reason why you are interested in NPCL? Yes, sir. Because sir, NPCL generally deals with the generally it's an energy sector. And sir, it generally deals with the design and maintenance of the reactors. And sir, we as a chemical engineer, it's a very great place to work with, because we as a chemical engineer generally designs the reactor and we study only the reaction kinetics which is being going on inside the reactor. अच्छा ये बताइए न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? Sir, nuclear reaction generally it's being produces a great amount of energy, sir. Why? And what is sir, the because there is two process which is involved in the nuclear reaction, that is the fission and the fusion. कोई एक लेते हैं फ्यूजन बेस्ड तो रिएक्टर हमारे पास कोई है ही नहीं. Yes, sir. We do not have thermonuclear devices, so let's talk about fission process only. The fission process, sir, generally it produces a huge amount of energy than the chemical reaction. Why? Sir, because generally the nucleus of an atom, generally we have an atom, it has nucleus of an atom. It produces, sir, it splits into lighter nuclei when the nuclear reaction is carried out, and it produces tremendous amount of energy, which is sufficient enough to produce some electricity. That is my exact question. Why it produces tremendous energy? Have you heard about mass energy equivalence relation? एक मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है, आइंस्टीन ने दिया था. Yes, sir, is equal mc square. हाँ, क्या मीनिंग है इसका? What is m in this?
don't इसके know अंदर जो about एम है वो this. क्या है? M वही is रीजन है न्यूक्लियर एनर्जी का। ये क्या है एम, बताइए। व्हाट इज दिस एम देन? no clear cut idea about this. ओके, सो आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, बायोमास के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है, So biogas. बायोगैस के ऊपर, सॉरी। सो बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू मेजर किया था क्या आपने? No sir, calorific value measure नहीं किया था. We तो क्या only क्या produce होती है? biogas. So how do we compare? What kind of energy do we get in that? Sir, it's generally a non-conventional source of energy. नहीं, लेकिन हम कैसे निकालेंगे कितनी एनर्जी आएगी, कितना एनर्जी हमें मिलेगा, वो कैसे पता लगेगा? No idea, sir. Okay, over to you now, Nikhil. Okay. How are you, Amit? I'm fine, sir. Am I audible to you? Yes, sir, you're audible. Okay. Tell me something about your project. Please elaborate about it. Sir, we basically did a project on production of biogas, production of biogas under anaerobic conditions. Sir, in Okay. those, sir, in that we take some vegetable waste along with cow dung, and we prepare a slurry with those vegetable waste and cow dung, and from that we take equal ratio of water, equal ratio of vegetable waste and cow dung, and equal ratio of water. We mix it together, and we put that slurry inside the 20 to 25 liters digester, and we completely sealed pack the digester, and we left it to react for generally we left the digester completely airtight so that no air can, so that it doesn't expose to atmosphere under anaerobic condition. And sir, we after 20 to 25 days we will check on the digester that whether the gas is producing or not. We attach a slight nozzle to the digester and attach a air balloon, and we can confirm that the gas is producing when the air balloon got just inflated. Okay. आपका production rate क्या था? So I don't remember the production rate. Okay. Pressure कितना pressure तक आप achieve कर पाए थे? So no idea, sir. Idea नहीं है. Okay. नया क्या किए थे इसमें? मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ जो बायोगैस होता है आपने क्या नया किया था? डाइजेस्टर यूज होता है, एक रिएक्टर यूज होता है, क्या आपने क्या नया किया था? एनारोबिक रिएक्शन कंडीशन होता है, आपने नया क्या किया था आपका प्रोजेक्ट में? सर बेसिकली नया सर इसमें वैसा कुछ किया नहीं था, मतलब सिर्फ एक बायोगैस प्रोड्यूस किया और जनरली टेस्ट किया उसमें एक नोजल डाल करके कि वो सच में मतलब वो गैस प्रोड्यूस हुई कि नहीं। जस्ट उसमें एक लाइटर मींस मार के तो देख रहे कि उसमें से वहाँ एक जनरली फ्लेम इज प्रोड्यूसिंग। सो सर मेनली उसमें मीथेन कंटेंट ज्यादा रहता है, जनरली 55 to 65%। सो वी कंफर्म एट लास्ट दैट इट्स बायोगैस। ओके, आपने कैसे कंफर्म किया कि मीथेन 50 से 60% है उसमें? सर जनरली बायोगैस में सर मेनली मीथेन ही ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें काऊ डंग हम लोग यूज करते हैं ना। नहीं, आपने कंफर्म कैसे किया? वो तो रहता है जनरली, ठीक है। आपने कंफर्म किया कि आपने बता रहे हैं? सर कंफर्म किया था सर। कि कैसे किए थे? सर वो जनरली हम लोग वो जो सैंपल था बायोगैस का जो बलून पे, वो हम लोग जनरली सिम्फर एक है वहाँ पर धनबाद में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, वहाँ एक लेकर के गए। वहाँ एक ये था सर, एक डिवाइस था वो ऑर्सेट एनालाइजर, ओके। वहां से। ऑर्सेट एनालिसिस से किया आप? यस सर। ऑर्सेट एनालिसिस क्या होता है? सर वो कंपोजिशन मेजर करता है सर गैसेस का, फ्लू गैसेस का। ओके। और आपका ओके, अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स बताइए, क्या क्या टाइप्स का है बायोफ्यूल्स का? एक तो बायोगैस आपने बनाया, और क्या क्या है? बायोडीजल एक, बायो फर्टिलाइजर है। और बायो सर फर्टिलाइजर, जनरली बायो फर्टिलाइजर वही है जो मतलब बायोफ्यूल्स बताइए। बायोफ्यूल सर, बायोडीजल एक। हाँ। और सर आइडिया नहीं है सर, एक बायोगैस है, बायोडीजल के बारे में पता है। आइडिया नहीं है आपको? ओके। अच्छा, गैस और वेपर साइकिल के बारे में पता है आपको? नहीं सर आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं। ओके, पावर प्लांट के बारे में आइडिया है? सर पावर प्लांट सर उतना आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत है।
अच्छा कितने टाइप के पावर प्लांट आपको पता है? सर हाइड्रोइलेक्ट्रिक, thermal power plants, nuclear power plants, ओके, hydroelectric power plants, and generally. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं आपको एक केस देता हूँ, एक केस स्टडी है, ठीक है। Yes, sir. सपोज आप एक रूम में हैं, रूम का सब दरवाजा और विंडोज सब क्लोज है, Yes, ठीक है। और रूम के अंदर आपका 150 वाट का एक फैन चल रहा है, yes, sir. ठीक है। इनिशियली आपका जो रूम का टेम्परेचर था वो आप एनवायरमेंट टेम्परेचर ले लीजिए, ठीक है, Yes, रूम टेम्परेचर ही मान लीजिए। yes, sir. 10 घंटे के बाद वो टेम्परेचर बढ़ेगा या कमेगा अगर आप बंद करके रखे हुए हैं तो? सर फैन चालू रहेगा क्या? हाँ, फैन चालू है। ओके, सो सिर्फ फैन है रूम में और कुछ नहीं है, पूरा रूम कंप्लीटली पैक्ड है। रूम कंप्लीटली पैक्ड है। सर टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर। कैसे बढ़ेगा? सर क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे होगा? सर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो एक्चुअली में जो फैन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है वो हम्म, इलेक्ट्रिसिटी जनरली सर वो थर्मल एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा सर, ठीक है। मतलब एज अ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, तो उसका हीट बढ़ेगा। यस सर, रूम का हीट बढ़ जाएगा उससे। अच्छा, आपको 10 घंटे के बाद अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे आप? एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सर नो आइडिया सर। आइडिया नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, टेम्परेचर प्रोफाइल्स एक बनाइए तो आप। टेम्परेचर प्रोफाइल्स इन कूलिंग एंड कंडेंसिंग ऑफ सुपर हीटेड वेपर से जो कंडेंस हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनेगा? सर आइडिया नहीं है सर, टेम्परेचर प्रोफाइल। आइडिया नहीं है? नहीं सर। अच्छा, बर्नौली का आपको एजम्पशंस पता है? क्या क्या एजम्पशंस है? हाँ यस सर, बर्नौली का जम्पशन पता है। बताइए क्या क्या एजम्पशंस पता है? सर जनरली सर द फ्लो शुड बी इनकम्प्रेसिबल, flow should be ideal, and flow should be along the streamline, and flow should be frictionless. नहीं नहीं, क्या बोले? एक तो फ्लो शुड बी आइडियल। Yes sir, for the ideal fluid, it's valid for the ideal fluid. Flow should be incompressible, and flow should be frictionless, and flow should be along the streamline. आइडियल फ्लूइड मतलब क्या है? आइडियल फ्लूइड क्या होता है? Ideal fluid मतलब सर जीरो विस्कोसिटी, मतलब डिवॉइड ऑफ any shear stress. अच्छा, विस्कोसिटी जीरो नहीं होगा तो? जीरो होगा तभी ये वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है बर्नौली Yes sir. इक्वेशन। Yes sir. ओके, ये आइडियल फ्लूइड हो गया। और Incompressible flow, सेकंड ये हो गया। और और सर एक frictionless flow. ठीक है, थर्ड हो गया। और Flow should be along the streamline. अलोंग स्ट्रीमलाइन। अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो किस केस में होगा? Sir, across the streamlines, नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, पर एक्यूरेट रीजन तो नहीं पता सर इसका। नहीं बताओ। ओके। अच्छा, स्टैटिक प्रेशर पता है क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर यस सर, स्टैटिक प्रेशर। क्या होता है बताइए? The static pressure is the generally we know as the term called the hydrostatic pressure, which is generally the pressure which is resulting due to the depth or height. वो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया ना, वो तो स्टैटिक प्रेशर खाली बताइए। Static pressure, that is sir, a pressure exerted by the fluid which is in rest condition at a point. ठीक है, डायनेमिक प्रेशर क्या होता है? तो डायनेमिक प्रेशर होता है जो एक प्रेशर exerted by the flowing fluid particles, जिसको बोलते हैं वो सर, वो डायनेमिक प्रेशर में आता है। अच्छा, और स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है? स्टैग्नेशन प्रेशर सर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जनरली, विच इज द स्टैटिक एंड डायनेमिक। और सर स्टैग्नेशन प्रेशर का अगर एक्चुअल डेफिनेशन का बात करें तो विच इज द जनरली जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका फ्लूइड पार्टिकल्स, वो जनरली हम लोग उसको रेस्ट पे लेके आते हैं आइसेंट्रोपिकली। सो वो जो प्रेशर जो रिजल्ट होता है ना सर, उसी को बोलते हैं सर स्टैग्नेशन प्रेशर।
ओके, कैसे मेजर करते हैं इसको? स्टैग्नेशन प्रेशर सर एक डिवाइस होता है पाइटोट ट्यूब करके सर, उसको उससे से मेजर करते हैं सर। मैकेनिज्म बताइए पीटर टिप का, कैसे होता है सर ड्रॉ करके बताऊं क्या? बताइए। हो गया? यस। दिखाइए क्या ड्रॉ किया आप। ठीक है, तो क्या कैसे मेजर करता है ये? सर ये तो सर स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करता है इस पॉइंट पे, जैसे जहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल्स एक एज्यूम करेंगे पॉइंट जहाँ कंप्लीटली वो काइनेटिक एनर्जी ये जनरली फ्लूइड पार्टिकल्स वो जहाँ रेस्ट पे आ जाएगा, तो वहाँ पर जो प्रेशर जो आता है, जो रिजल्टेंट प्रेशर, वो मेजर करते हैं सर इसमें। तो ठीक है, चलिए, आई एम डन फ्रॉम माय साइड सर। ठीक है, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है। या आ, एक तो आप ये जो एनपीसीएल के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या सब्जेक्ट बोलने वाले हैं आप वहाँ पर, अगर पूछा सर जाएगा? पूछा जाएगा तो सर हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर, हम्म, और सर फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो भी पूछे हो। तो एक तो अब एनपीसीएल है, तो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडस्ट्री है, तो पावर प्लांट के बारे में तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, वो केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो ना हो उससे मतलब नहीं है। तो ओके आप सर। गैस साइकिल, वेपर साइकिल, ये कवर करके जाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है। यस सर। और और दूसरी बात, जब भी आपको एक केस स्टडी दिया जा रहा है, यस सर। तो केस स्टडी का पहले आपको एजम्पशंस बताना होगा। बिना एजम्पशंस के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक, क्या क्या एजम्पशन आप एज्यूम कर रहे हैं वो पहले आपको बताना है वहां पर। उसके बाद आपका, क्योंकि वहां अप्रोच बताना है आपको उसका। मैंने जो पूछा कि 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो पहले आपको एजम्पशन मुझे बता के उसको आगे बढ़ना है। ठीक है। सर फॉर एग्जांपल जैसे एजम्पशन मतलब? जैसे मैंने आपको बोला कि फैन चल रहा है अंदर में, यस सर। तो आपको लेना है, आपको सॉल्व कैसे कर पाएंगे आप? पहले तो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना पड़ेगा उसका। ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालेंगे? पहले आपको रूम का साइज जानना होगा। रूम का साइज आपको पता नहीं है, तो आप एज्यूम करेंगे या फिर पूछेंगे कि रूम का साइज बताइए। वॉल्यूम यस आपको सर। पता रहेगा, तब आप मास निकालेंगे। मास किसका निकालेंगे? क्या है अंदर में? एयर है। यस सर। एयर का मास निकालेंगे। और तो एयर को आप क्या एज्यूम करेंगे? एयर इज एन आइडियल के सबको एज्यूम करना है। ठीक है।
Yes, sir. और क्या क्या एज्यूम करेंगे आप? स्पेसिफिक कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर, ये एज्यूम करना होगा आपको, नहीं तो आपको एमसीबी डेल्टा टी नहीं निकल पाएंगे आप। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा चीज ये कैसे आएगा, जैसे आपको अगर पता रहेगा कैसे सॉल्व करना है तो वो अप्रोच अपने आप आएगा। तो पहले आपको अप्रोच बताना है वहां पर कैसे क्या होगा। ठीक है, सिस्टम को आपको क्लोज लेना है, क्या लेना है। जैसे आपने बोल दिया कि हीट जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो रूम को आप एज इंसुलेटेड सिस्टम ले रहे हैं वहां पर, कि वहां से हीट जो डिसिपेट हो रहा है, हीट अंदर में ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है, बायोगैस के बारे में आपको पता है, ठीक है, पढ़िए। Yes, sir. प्रोडक्शन अब मतलब आपका जो हेडलाइन है प्रोडक्शन, अब लगा है कि बहुत मतलब गजब प्रोडक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो जो आपका बीटेक का जो प्रोजेक्ट है, ये हेड मतलब ये है आपका Yes, sir. डिटेल जो है, तो उसके बारे में अच्छे से जाइए और बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़िए। और Yes, एक sir. बात, जो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल होता है डिफरेंट सिनेरियो के लिए, उसको Yes, आप sir. एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको टेम्परेचर प्रोफाइल डिफरेंट सिनेरियोज का पूछा जा सकता है वहाँ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना है आपको? सर एक क्वेश्चन सर, जैसे जनरली एक हीट ट्रांसफर का एक इंटरव्यू क्वेश्चन था सर, उसमें डाउट है सर, उसका आंसर मिला नहीं है जल्दी। ठीक है, वो वाला मुझे पर्सनली आप पूछेंगे। और कुछ है इसमें, कुछ जानना होगा आपको? सर प्रोजेक्ट के बारे में सर, मतलब जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन, सो सर इट वाज सीमिंग जनरली ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट और जनरली इट्स लाइक अ ब्लफ। नहीं, वो ऑर्डिनरी जानना था प्रोजेक्ट ही लग रहा है, क्योंकि आपने कुछ इसमें नया तो मुझे लगा नहीं कुछ। सर। ठीक है, जो जैसे बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसी है। तो आपने नया क्या किया वो आपको ढूंढना है, आपका यूएसपी क्या है प्रोजेक्ट का, वो आपको ढूंढना है। यस क्योंकि सर। जब अगर रिसर्च गैप ही नहीं है तो रिसर्च माना ही नहीं जाएगा। यस सर। ऐसे तो बहुत सारा पेपर है, वही पेपर को उठा के आप रिसर्च कर लेंगे तो हो गया उसमें फिर प्रोजेक्ट, है कि नहीं? यस सर। तो आपको अपना यूएसपी क्या है अपना प्रोजेक्ट को ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके सर। ओके सर। Okay, Amit. So, ओके, आई एम डन फ्रॉम। yeah. So, Amit, you need to do your project seriously, huh? ओके क्योंकि सर। that may be of interest to them. ओके सर। अब जादूगुड़ा में यूरेनियम है, यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम 238 होता है, 235 इज आफ्टर इट इज एनरिच्ड। ओके सर। वो पता है, मैंने जो एनपीसीएल का डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है उसमें सब लिखा हुआ है। ओके सर, आई विल गो थ्रू इट सर प्रॉपर्ली। So will go through means it should be before mock, in fact before first HR। डॉक्यूमेंट जो बना है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गो थ्रू करो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। यस सर। Because if you are from Jharkhand and if you do not even know what is a natural uranium in जादूगुड़ा, तो ट्रबल हो जाएगा आपको। यस सर। Got it? यस सर। जादूगुड़ा बहुत फेमस है वो झारखंड में, यस लेकिन सर। ट्रबल ये है कि हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई साहब जहाँ कोयला मिलता है वहां पे हम थर्मल पावर प्लांट लगा देते हैं, लेकिन जहाँ यूरेनियम मिल रहा है वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो कोयला तो टन्स में चाहिए ना, न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ही छोटे ग्राम्स में चाहिए होता है। यस सर। दैट वी कैन इवन टेक फ्रॉम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए हमारे पास कुछ सिचुएशंस कंड्यूसिव होनी चाहिए, नेचुरल डिजास्टर नहीं होना चाहिए वहां पे, सिचुएशन कंड्यूसिव होनी चाहिए, हमारे पास एक एरिया होना चाहिए अवेलेबल, यस सर। राइट? तो वो फैक्टर्स थोड़े उसके ऊपर वर्कआउट करो हमें। ओनली थिंग इज आई हैव गॉन थ्रू सम एचआरस विद यू, लेकिन आप उनको आपने रिवाइज नहीं किया अभी चीजों को। And I expect that you will go through the document provided to you. You will visit the NPCL website, and you will also go through the HRs which we are conducting with other students who are going for NPCL. यस सर। कोई एक क्वेश्चन भी अगर ढंग से हिट हो गया ना वहां पे, it can work for you. And as you know, NPCL is 100% interview based selection. Yes, sir. Sir, actually, we doubt that it interview based means only they focus on technical or they generally consider both. What do you think? Why they are asking HR questions? HR questions to generally, So if you answer all the HR question wrongly, they will select you. no, sir. What do you think? We should not prepare. No, sir, we should prepare, but actually, sir, it's generally similar. Sir, मतलब हम सुने कि मतलब वो See, when they are बार के asking इंटरव्यू से chemical सिमिलर होता है। energy, when they are asking chemical and nuclear energy from you, mass energy equivalence, it is not HR, it is technical. Understand that? It is a physics. General physics, sir. You are finding reasons why not to answer the things. See, if you really want to pass, Amit, listen to what we are saying. Okay, sir, I will. If you are not serious, you can find 10 excuses.
Sir, are they asking HR only for the sake of asking, or they should go only technical? You are finding so many excuses not to prepare. सर मतलब सर मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है तो मुझे उसके लिए क्या क्या करना होगा? ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जिस बच्चे को एनर्जी मास इक्विवेलेंस पता होगा वही तो डिफरेंस करेगा। जिसको ये पता होगा कि केमिकल एनर्जी कुछ और चीज है, न्यूक्लियर एनर्जी कुछ और चीज है, वो तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। Yes, sir. All I understand is you need to prepare well for interview. And if you prepare well, you will do. I'm not prepared at all. मेरे को नहीं लग रहा कि आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हो अमित। जो ग्रेविटी है इस इंटरव्यू की 100% इंटरव्यू है ये 100%। जब Yes, sir. मेरे को पता लग जाए कि 100% इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है तो मैं इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लूंगा। कम से कम मैं डॉक्यूमेंट Yes, तो sir. पढ़ूंगा। Yes, sir. That is the lowest level of sincerity you are displaying by not even going through the document जो यूपीडी ने आपको प्रोवाइड किया है। एंड बिलीव मी, इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो इवन उन्होंने काउंसलिंग नहीं लिया हुआ हमारा, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। आई एम वेरी श्योर बिकॉज़ वी प्रोवाइड सर्टेन थिंग्स फ्री। सर डॉक्यूमेंट से तो मैं गो थ्रू किया था सर, लेकिन ज्यादा डिटेल जो होता है ना सर वो You don't know nuclear fuel also, Amit. अच्छा। I clearly mentioned what is uranium 238, which in Jharkhand is available. जादूगुड़ा तो नहीं है वो, मतलब आप समझो इसकी ग्रेविटी जो मैं बोल रहा हूँ। If I'm getting irritated, that simply means you're not prepared. As a teacher, I'm not satisfied. You're not done it because मेरे को लगता है this is the third time I'm meeting you. 2 बार मैंने HR लगाया है और ये तीसरी बार है। But I'm not seeing any sincerity on your part कि मेरे को खींचना है, मेरे को करना है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने 2 बार भी फीडबैक यही दिया था कि आप यार वो गो थ्रू करो डॉक्यूमेंट। See, I can very casually say कि ठीक है डन ओके होगा, but when I see a student making mistake, not doing effort properly and he may spoil the attempt, कितनी मेहनत के बाद आप यहाँ तक गए हो, only one interview is left, click it, you are in. Seriously लो इसको मैं। सर नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर वेल सर, अच्छे से 100%। तैयारी कर ले और जो बाकी बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं वो भी तैयार कर ले, गो थ्रू कर ले, अपना प्रोजेक्ट अच्छा तैयार कर ले। यही तो है इंटरव्यू, और क्या है इंटरव्यू। व्हेन यू से बायोगैस है मेरा, मैंने बायोगैस पे काम किया है, तो बायोगैस की सारी कैरेक्टरिस्टिक एज केमिकल इंजीनियर यू शुड नो दैट बायोगैस होती क्या है। भाई मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या है ये नेचुरल गैस है, कौन सी चीज है ये, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, और उसमें से कैसे हम पावर प्लांट, बायोगैस प्लांट के बारे में कुछ बता दो। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तुमने बायोगैस पे काम किया है, बायो पावर प्लांट होता है। तो आप समझो ना कितना क्लोज है तुम्हारा प्रोजेक्ट उन लोगों के इंटरेस्ट से, और तुम नहीं करोगे अमित तो अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी यार। चलो प्रिपेयर वेल अमित एंड टेक इट सीरियसली। आई एक्सपेक्ट यू विल टेक इट सीरियसली, राइट? Yes, sir.